Is slide visible to everyone? The slide, was that visible? Yes, it was. Okay. So in yesterday's lecture, uh, we saw the working of a PDA, how a PDA works, and basically we saw how we can convert a given CFG into a equivalent PDA. So this is actually a very useful technique through which you can construct PDA for almost every language, for all the languages for which are in which for which a CFG exists. Okay, so if you have a language and there is a CFG for that language, you can convert that CFG directly into a PDA by following simple procedures. So we will be seeing one such language today, and we will be converting that CFG directly into a PDA. So that is a PDA for a palindrome language. Okay, so if you are given a language of palindrome, so and you have been asked to create PDA for it, then either you can directly try to make a PDA for the language, or what you can do is that you can make a CFG for that language, and you can convert that CFG into a PDA. Okay, so many a times it may happen that the language is a bit complex, and it is becoming cumbersome to create a PDA for that. So what you can do instead is that you can make a CFG. Many a times it is easier to construct a CFG for a given language than to make a PDA directly. And if you are able to make the CFG easily, then it becomes easy way out from there, and you can just follow steps to to design the PDA. Okay, so this is our palindrome CFG, the context free grammar for the palindrome language. So to be precise, this palindrome is a odd palindrome, which means it is going to generate a palindrome which is going to be of odd length. Okay, so if you apply the first production, then you apply the second production, and then you apply the this third production, you will get A B A, which is a palindrome, and it is of length 5. So it is a odd length palindrome. So this language generates odd length palindrome. It doesn't generate a null string. Okay, so the minimum length of palindrome will be 1, and over here it could be of any length. So our first step will be to uh, to convert this CFG into a CNF. Okay, so that will be our first step. So these are the steps involved in converting a CFG into a PDA. First step is to convert the given CFG into a CNF, okay, into a Chomsky normal form, and then convert that CNF into a PDA. Okay, you cannot directly convert a CFG into a PDA. The first step will be to convert the CFG into a CNF, into a Chomsky normal form, and on that Chomsky normal form, you will get the PDA. Okay, so this is the steps involved. You cannot directly convert a CFG into a CNF. It may happen that a CFG is already in CNF. That could happen, but if it is not, then you have to convert into a CNF. So in Chomsky normal form, I will again tell you what is a CNF. A CNF is just a CFG
which which have productions of only two types. Okay, there are productions only of two types. So one production is a form non-terminal, gives produces two non-terminals, and a non-terminal produces a single terminal. Okay, so all the productions in CNF will be of these two types. Either it will be a non-terminal producing two non-terminals, or it will be a non-terminal producing a single terminal. Okay, so if your CFG is already in this form, every production in your CFG is either of the two production, then you can skip this part. You can skip the second step, step one. Okay, you can skip the step one, and you can directly convert into a PDA. But if it is not in CNF, you have to convert into a CNF first. Okay, so this is the procedure for converting a CFG into a CNF. What you have to do is that you have to assign new non-terminal symbols to every terminal that appears on the right side of this production. So okay, so here this single A becomes capital A. So we are assigning this A symbol, the capital A, to this small a. Okay, and for B we are assigning it capital B. Okay, so this production SA produces A SA, it becomes S produces capital A SA. So we have introduced this new non-terminal. Okay, so capital is a non-terminal, and this BSB, it becomes capital B SB. So instead of this terminal symbol small b, we have this capital B. This is a non-terminal. So two new non-terminals we have introduced. Okay, and these non-terminals instead they are of use. They produce single A and single B. Okay, so this capital A, it produces single A, and this uh, B, it produces single B. So these are the A and B. Okay. Also, we cannot stop over here. Okay. Now this is something which you have to understand properly. Is that if I stop over here, then this PDA will be of no use. The CFG will be of no use. Why? Because as let us say that you see this production S produces ASA. Okay, then this A will produce a, this A will produce a, but this S is not producing anything. Okay, so you have to add this production of S produces A and S produces B, so that this string, it can terminate. Otherwise it will not. Okay, so our CFG for palindrome, it becomes in Chomsky normal form. It is converted into a Chomsky normal form with all these productions. Okay, so now, okay, now one thing is left, is that on the right side of the production we can only have two non-terminals, and we have three over here. So what you're going to do is that we're going to club these productions together, and you are going to introduce a new non-terminal instead of these two. Okay, so S produces ESA, this becomes R1. Okay, so instead of R1 we have AS. Okay, so instead of AS we have replaced it with a new uh, non-terminal which we call R1. This BS is converted to R2, it's transformed into R2, and this R1 R2, R1 was, it will produce AS. You have to introduce this new production over here, and this BS is produced from R2. So R2 is introduced over here. R2 produces BS. Okay. Now all this production will remain same, will not be changed. Why? Because they are already in Chomsky normal form, so they remain same. And now you can see over here that we have converted our CFG into CNF. We have rewrote the CFG into this CNF. If you see at all the productions,
they are of one of the two forms, where one production is a form non-terminal producing two non-terminals और a non-terminal producing a single terminal. ठीक है, इसके अलावा कोई प्रोडक्शन हमारे पास नहीं है, इसलिए ये CFG जो है आपका CNF में कन्वर्ट हो गया है. Okay, so this is the production that you get. Okay, now you can see कि यहाँ पे जो ये S, A और B था, मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है, A और B. नेक्स्ट स्लाइड में जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये A हमने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, तो ये हमारा CFG जो है CNF में बन गया है. अब इस CNF को we can convert this or we can develop a PDA from this CNF. Okay, प्रोसीजर इज वेरी सिंपल. इसके बाद ज़्यादा काम बचता नहीं है आपका, आपको बस कुछ स्टेप फॉलो करना है और ये आपका it will become a it will be easily converted to a PDA. Okay, so देखते कैसे इसको हम करेंगे. So this is the CFG which has been converted into a CNF. Now all you have to do is that you have to follow simple procedure. तो पहले तो यहाँ पे स्टार्ट स्टेट इंट्रोड्यूस कर देते हैं. ठीक है, यहाँ से हम सीधा जाएंगे और पहला काम हमारा होगा is to push the starting symbol S onto the stack, and then we will straight away reach the central pop state. तो ये pop state जो है ये लगभग यहाँ तक जो आपका CFG बनेगा वो सब लैंग्वेज के लिए सेम होगा. ठीक है, स्टार्ट देन पुशिंग द स्टार्ट सिंबल एंड देन रीचिंग दिस पॉप स्टेट. ठीक है, अब मैंने आपको कल बताया था कि हम CFG के दो सेक्शन बनाते हैं, एक सेक्शन नीचे का होता है और एक सेक्शन यहाँ ऊपर बनता है. तो जो नीचे का सेक्शन रहेगा इस पे हम सारे वो प्रोडक्शन देखेंगे जो इस टाइप के होंगे. प्रोडक्शन वन नॉन टर्मिनल वन प्रोड्यूसिंग टू नॉन टर्मिनल्स. ठीक है, उनको हम यहाँ पे पुश करेंगे स्टैक में. ठीक है, तो कितने हमारे पास अभी है ऐसे प्रोडक्शंस? 4 हैं. एक ये वाला, दूसरा, तीसरा एंड दिस इज द फोर्थ वन. ओके, सो इन 4 प्रोडक्शंस को हम नीचे बनाएंगे और इन दोनों को फिफ्थ और सिक्स को वी विल बी मेकिंग देम इन दिस सेक्शन. ओके, तो पहले हम पॉप करते हैं तो हमको 4 टाइप के नॉन टर्मिनल्स मिल सकते हैं जो दो नॉन टर्मिनल्स को प्रोड्यूस करते हैं. S, R1, R2. ओके, 3 है यहाँ पे. ठीक है, S, R1 और R2. तो S, R1 एंड R2. ठीक है, लेकिन S जो है S दो प्रोडक्शंस में आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ के लिए हम एक और एरो बना देंगे. ठीक है, 4 प्रोडक्शन 4 एरो, 2 S के हैं और 2 R1 और R2 के हैं. ठीक है, तो पहले हम इसको देखते हैं. यहाँ पे जो S है ये क्या प्रोड्यूस करता है? R1A. ठीक है, तो कल हमने देखा था जब हम पुश करेंगे तो उसको उल्टा पुश करते हैं, पहले A पुश करेंगे देन R1 पुश करेंगे. तो पुश A then you have to push R1. ठीक है, और इसके बाद you will go back to this pop state. फिर जो दूसरा ऐसे जिसका एरो ये आ रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे? R2B इनको पुश करना है. तो पहले किसको पुश करेंगे? B को, देन R2. ठीक है, हर किसी के लिए वापस हम इस वाली स्टेट में जाएंगे पॉप में. ठीक है, फिर जो R1 है इसके लिए क्या है? R1 प्रोड्यूसेस AS. तो क्या पुश करना है हमें? S देन A. सो पुश S
then push A. Okay, then you have R2. R2 क्या प्रोड्यूस करता है, B और S. तो क्या प्रोड्यूस, पहले पुश करेंगे S, then we are going to push B. Push S and then push B. ठीक है, उसके बाद दोबारा we will end up over here. ठीक है, तो ये हमारे 4 प्रोडक्शन थे जो नॉन टर्मिनल प्रोड्यूसर्स, 2 नॉन टर्मिनल टाइप के थे, और वो चारों हमने यहाँ पे बना लिया हमारे. ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, ये 2 टर्मिनल बचे हैं. ठीक है, इन टर्मिनल्स में क्या करेंगे, इन प्रोडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, इन प्रोडक्शन के लिए क्या करेंगे, हम टेप से रीड करते हैं. ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, इसको हम ऊपर के सेक्शन में बनाएंगे. तो अगर आपका कैपिटल ए पॉप होता है तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू रीड ए. ओके, वी आर गोइंग टू रीड ए and we will come over here. Okay, if you pop B तो हम क्या करेंगे, we are going to read B और फिर हम वापस स्टेशन वापस आएंगे. ठीक है, तो ये दोनों प्रोडक्शन भी हमारे खत्म हो गए. तो हमारे 6 के 6 प्रोडक्शन हमने कवर कर लिया यहाँ पे. और अब एक ही काम बचा है कि अगर हमको स्टैक से नल एम्प्टी सिंबल मिलता है तो हमको फिर क्या चाहिए कि हमारा जो टेप है उसमें भी क्या है, रीड करके क्या है, डेल्टा है. ठीक है, ये ए मैंने यहाँ बना दिया, यहाँ पे नहीं आएगा, ये आएगा रीड बी में बी यहाँ पे आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे पॉप में क्या होगा, अगर हम लोग को स्टैक में डेल्टा मिला है तो हम रीड भी करेंगे, डेल्टा करेंगे. और अगर ऐसा हो रहा है तो वी विल एक्सेप्ट. इस तरह से हमारा CFG जो है उसको हमने चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया और उससे हमको ये PDF मिल गया है. ठीक है, ये करेक्ट है कि नहीं है इसे चेक करने का हमारे पास एक मेथड यही है कि आप एक इनपुट वर्ड लीजिए और उसको देखिए कि वो एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता है. इसमें लेटर से कि हमने छोटा सा पैलिंड्रोम लिया है EBA. ओके, तो ये CFG जनरेट करता है तो इस PDF को भी ये एक्सेप्ट करना चाहिए. ठीक है, तो क्या होगा, वी विल पुश S पुश होगा और क्या होगा, जब पॉप होगा तो हमको S ही मिलेगा. तो S 2 जगह पे है, इनमें से एक ही प्रोडक्शन है जो उसको प्रोड्यूस करेगा EBA को, वो पहला वाला होगा. तो मानते हैं कि वो हम इस बात को फॉलो करते हैं, इस बात को फॉलो करते हैं. ठीक है, तो क्या आएगा, पुश A एंड पुश R1. ठीक है, तो पुश A और पुश R1 S बाहर आ जाएगा हमारा. ठीक है, फिर हम वापस यहाँ पे आएंगे. अब क्या होगा, वी विल पॉप. ठीक है, पॉप करेंगे. यहाँ से मैं बात ड्रॉ करता हूँ, ये वाली यहाँ पे आए, फिर आपको क्या आएगा, पॉप करेंगे तो कहाँ पे आएगा, R1 पॉप होगा. क्यों, क्योंकि R1 क्या है, टॉप में है. एक चीज छोड़ गई है, S प्रोड्यूसेस A और S प्रोड्यूसेस B, वो हमारा रह गया है. ठीक है, ये 2 प्रोडक्शन जो थे S प्रोड्यूसेस A और S प्रोड्यूसेस B, वो हमने यहाँ ड्रॉ नहीं किए हैं, वो भी ड्रॉ करने पड़ेंगे हमें. तो यहाँ पे जो ये 2 प्रोडक्शन थे, A प्रोड्यूसेस A और B प्रोड्यूसेस B, और S प्रोड्यूसेस A और S प्रोड्यूसेस B, ये प्रोडक्शन हमारे रह गए, उनको हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे. तो जगह नहीं बची यहाँ पे. तो यहाँ पे आप ये 2 प्रोडक्शन ऐड हो जाएंगे हमारे. S प्रोड्यूसेस A, तो S यहाँ से पॉप होगा और रीड होकर क्या मिलेगा हमको, A मिलेगा. ठीक है, वैसे ही दूसरा S हमको क्या देगा, इट विल गिव अस B. ठीक है, थोड़ा मैसी बन गया है.
अभी पूरा बन गया है। तो ये एस प्रोड्यूसेस ए था और एस प्रोड्यूसेस बी था, वो हमने ऐड नहीं किए थे, वो हमने ऐड कर लिया अब। ठीक है, तो हम अब दोबारा इस वाले एग्जांपल में आते हैं हमारे। तो R1 पुश हो गया था, R1 पॉप हो गया था, और क्या पुश हुआ था फिर, एस एंड ए। इसको दोबारा से देखते हैं। ठीक है, तो वर्ड हमारा क्या था, ए बी ए। तो जो हमारा पाथ ट्रेवल होगा वो कहाँ से ट्रेवल होगा, स्टार्ट जाएंगे हम यहाँ से यहाँ, और फिर हम क्या करेंगे, पुश करेंगे एस को। ठीक है, तो स्टैक में क्या जाएगा, एस आ जाएगा। और फिर क्या होगा, हम पॉप करेंगे, पॉप करने को क्या मिलेगा, वापस यही एस मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये एस के लिए क्या है, दो वे हैं पीडीए के लिए। ठीक है, तो कौन सा वे इसमें जाएगा, कौन सा पाथ फॉलो होगा इसमें, ये वाला जो हमने यहाँ पे रेड मार्क किया हुआ है, पुश ए एंड देन पुश R1, पुश ए एंड देन पुश R1, तो R1 टॉप में आ जाएगा। ठीक है, फिर हम दोबारा यहाँ पे वापस आएंगे, फिर पॉप होगा, पॉप पे क्या मिलेगा हमको, R1 मिलेगा। ठीक है, R1 क्या टॉप में है, तो R1 बाहर आ जाएगा। और क्या पुश होगा, एस एंड देन ए, एस एंड देन ए। तो जो हमारा स्टैक है वो भी ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, फिर हम जब दोबारा जाएंगे वापस, इस पास से वापस जाएंगे यहाँ पे, फिर क्या करेंगे, फिर पॉप होगा। ठीक है, पॉप होने पे क्या मिलेगा हमको, दिस ए। ठीक है, तो इस ए के लिए हमको क्या करना है, इस ए के लिए वी हैव टू रीड। ओके, इस फॉर दिस ए वी हैव टू रीड। जब हम रीड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वी विल गेट दिस ए। ठीक है, तो ये ए यहाँ से पॉप हो जाएगा और हम क्या रीड करेंगे, ए। ओके, फिर हम दोबारा यहाँ पे वापस आ जाएंगे। ओके, फिर हम पॉप करेंगे, अब क्या मिलेगा, पॉप करके हमको एस मिलेगा। ठीक है, तो इस अब एस को क्या करना है, एस हैज टू प्रोड्यूस दिस मिडल बी। ओके, सो दिस एस विल प्रोड्यूस दिस मिडल बी। ओके, एंड वी विल कम बैक ओवर हियर। तो ये एस क्या करेगा, इट विल रीड दिस सेकेंड बी। ओके, तो ये एस ये वाला बी रीड कर लेगा। अब हमारे पास स्टैक में सिर्फ ए की सिंबल बचा है, ए। तो जब वो पॉप हो जाएगा हमारा ये वाला ए, तो क्या होगा, इट इज अगेन गोइंग टू रीड दिस थर्ड ए। ओके, ये ए रीड होगा और यहाँ से स्टैक से ये भी पॉप हो गया होगा। इसके बाद क्या होगा, स्टैक विल बी एम्प्टी एंड टेप विल ऑल्सो बी एम्प्टी। तो टेप जो हमारा स्टैक से पॉप हुआ वो हमारा एम्प्टी सिंबल था, और जो हमने टेप में रीड किया वहाँ भी एम्प्टी हमको मिल रहा है। तो आफ्टर दैट विल फॉलो दिस पाथ एंड योर वर्ड विल बी एक्सेप्टेड। ओके, तो अगर आपको पीडीएफ बनाने को आता है तो आप इस तरीके से भी पीडीएफ बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये हिदायत दूंगा कि आप, अगर आपको उसका पीडीएफ डायरेक्टली बनाना आता है जो सिंपल वे से है, हमने पैलेंड्रोम का पीडीएफ देखा है। ठीक है, वो इससे थोड़ा सा सिंपल दिखता है, लेकिन वो इट विल डिपेंड अपॉन योर इंजीनियरिंग कि आपने उसको पहले प्रैक्टिस किया है कि नहीं किया है। अगर आप एग्जाम में भूल जाते हो या आपको कंफ्यूजन होता है कि वो पैलेंड्रोम आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है पीडीएफ उसका, तो आप उसका सीएफजी बना के इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सीएफजी बनाना हमेशा आसान होता है, सीएफजी को याद रखना भी आसान है, क्योंकि आपको पता है पैलेंड्रोम क्या, सीएफजी इज सिंपली ए एस ए एंड एस प्रोड्यूसेस वी एस बी। ओके, इसके बाद से आप जो है आराम से इसको सी एन एफ में कन्वर्ट करके बना सकते हैं। अगर आपको इस मेथड से नहीं है तो आप इस मेथड को समझ में आप थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आप उस वाले मेथड से भी बना सकते हैं जिसमें आप डायरेक्टली सी एन एफ बनाते हैं, डायरेक्टली आप पीडीएफ बनाते हैं। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? यू कैन आस्क। अब तो समझ में अगर आपको आ गया है, अगर कोई समझ में कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। ये मेथड समझ में आया आपको?
Have you understood? Type yes in comment section if you have understood it. Okay. Now, for the remaining part of this lecture, इसकी स्नैपशॉट आप ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत पैसा बन गया है. मैं इसको सिंपल ब्लॉक डायग्राम में भी बनाऊंगा और उसको स्लाइड में लगा के फिर आपको स्लाइड दूंगा इसकी. ठीक है, तो उसको अभी फोटो मत खींचो आप. तो यार क्वेश्चन फॉर टुडे, ये क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व करना है. ठीक है, इस लेक्चर के दौरान ही आप इसको सॉल्व करेंगे. और पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ. ये डिजाइन करना है. ओके, so this is your question. You have to solve it now. You have to construct a PDA for the following language. L equals a n b raised to power 2n. ओके, तो ये जो लैंग्वेज है इसका आपको पीडीए बनाना है. इस पीडीए में जो वर्ड होंगे, दे विल बी ए डबल बी देन डबल ए 4 times b and so on. ठीक है, तो नंबर ऑफ ए will always be half of number of b's, or you can say that number of b's will always be double of a and they will succeed in a. ओके, तो जितने भी b होंगे वो a के बाद आएंगे और जो उनका नंबर होगा वो क्या होगा, a के नंबरों से डबल होगा. ठीक है, तो इसका आपको पीडीए डिजाइन करना है. ठीक है, तो अगेन या तो आप डायरेक्टली इसका पीडीए डिजाइन कर सकते हैं. तो पीडीए डिजाइन अगर आपको बिना सीएफजी बनाए डिजाइन करना है तो उसके लिए मैं आपको हिंट देता हूँ क्या इसका रहेगा. तो प्रोसेस ये रहेगा कि पहले तो छोटा वर्ड जो इंटे में लिख लिखिए. ठीक है, लॉजिक आप इसका पहले समझिए, उसके बाद ही आपको डिजाइन करना है. इस तरह प्रोग्रामिंग में हम लॉजिक क्या ऐसे ही आपको करना होगा. और तो क्या करेंगे, ए जितने भी हमको पढ़ेंगे उनको क्या करेंगे, स्टैक में कुछ करते रहेंगे. ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, जब आप बी को पढ़ेंगे तो अब आपको क्या करना है, जब आप बी रीड करेंगे तो आपको यहाँ से अगर आप एक ए पॉप कर देंगे तो कोई मतलब निकल के आएगा नहीं. तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब रीड आप बी करेंगे तो आप दो
या हेलो। हाँ, ये थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ था बीच में। द कनेक्शन गॉट लॉस्ट बिकॉज ऑफ सम, आई डोंट नो, नेटवर्क इशू। अब आ रही है सबको आवाज़ मेरी? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप, यू कैन प्रोसीड विद द क्वेश्चन। आप इसको लिख लीजिए, a n b2 raised to power n। इसका आपको पीडीएफ बनाना है। आपका पीडीएफ बन जाए तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। शेयर कैसे करेंगे, कुछ चीज़ आपको देखना पड़ेगा। मुझे इसका आइडिया नहीं है कि इसमें कोई डॉक्यूमेंट कैसे शेयर किया जाता है। जिन्हें पता नहीं है क्या करना है, ये जो आपको पीडीएफ है, इस लैंग्वेज का पीडीएफ ड्रॉ करना है। एक मिनट, शायद स्क्रीन शेयर नहीं है मेरी। ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज है, a n b2 इसका आपको पीडीएफ ड्रॉ करना है। बन गया? यही है। जो भी बी पढ़ोगे आप, पहला बी उसको स्किप करोगे, फिर सेकंड बी के लिए आप पॉप करेंगे। फिर उसके बाद जो बी पढ़ोगे उसको स्किप करोगे, फिर सेकंड बी के लिए पॉप करोगे। तो इस तरह दो बी के लिए एक ए पॉप होगा।
हम्म। ये भी एक लॉजिक हो सकता है। आकृति पूछ रही है कि कैन बी पुश टू ए एट अ टाइम एंड देन पॉप एवरी बी व्हेन ए इज इनकाउंटर्ड। इनका जो लॉजिक है वो ये है कि जितने भी हम ए पढ़ेंगे उनके लिए हम दो ए पुश करेंगे इंस्टेड ऑफ एक ए। तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क फाइन। जैसे आपने ये ए पढ़ा, तो यू गोइंग टू पुश टू एस, एंड देन फॉर दिस ए यू आर गोइंग टू पुश टू एस, then you're going to just cancel out a b for every a by popping it out of the stack। ठीक है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू वर्क फाइन। ठीक है, अगर आप ऐसा लॉजिक भी यूज कर रहे हैं वो भी वर्क करेगा। टेक्निक पीडीए की बनाने की यही रहती है कि आप पहले जो वर्ड है, कोई भी वर्ड उस लैंग्वेज का है, उसको इनपुट टेप में रख के देखिए कैसे उसको रीड करेगी मशीन और कैसे उस वर्ड के लिए वो एक्सेप्ट स्टेट में पहुंचती है। किसका हो गया, किससे बन गया है, वो अपना आंसर शेयर कर सकता है मेरे साथ। आप अपना वीडियो ऑन करके मुझे अपनी कॉपी दिखाइए, देन आई विल सी। शिवम। यस शिवम, यू कैन शो मी योर आंसर। इसमें से देखिए कोई डॉक्यूमेंट अगर आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। या आप मुझे फोटो खींच के मेल कर दीजिए। आप ऐसा कीजिए, स्क्रीन में सही से दिख नहीं पा रहा है, आप इसको इसकी फोटो खींच के मुझे आप मेल कर दीजिए। ऐसा कर लीजिए आप। ईमेल मैंने टाइप कर दिया अपनी कमेंट में। इस मेल में आप इसकी फोटो खींच के मुझे मेल कर दीजिए इसको, देन आई विल सी।
और कितनों से हो गया है? हो गया आपसे? चलिए मैं इसको बना रहा हूँ यहाँ पे। एवरीबॉडी लुक एट माई स्क्रीन। तो हम पहले, जैसे मैंने आपको बताया है, टेप में एक एलिमेंट ले लेते हैं, एक वर्ड ले लेते हैं जो उस लैंग्वेज में होगा, और वो उसके लिए हम CFG, उसके लिए हम PDF बना के देखते हैं सीधा। ठीक है? तो एज ऑलवेज पहले आपको स्टार्ट करना है, एंड देन यू हैव टू रीड। ओके? सो फॉर एवरी ए दैट यू रीड, यू हैव टू पुश दैट ए ऑन टू द स्टैक। ओके? अभी जो मैंने जो बताया था आपको, उस प्रोसीजर से देखते हैं। हर ए के लिए हम सिर्फ एक बार उसे पुश करेंगे। सो यू रीड ए, देन यू पुश ए। ओके? तो जितने भी ए हम पढ़ेंगे उनको क्या करेंगे हम, स्टैक में पुश करते रहेंगे। ठीक है? लाइक दिस। देन एज सुन एज यू रीड a B, then what you have to do? You have to again perform the read operation. ठीक है? तो जैसे हमने ये इस वाले बी को पढ़ेंगे, तो हमको क्या करना है, एक और बार रीड करना है दूसरे बी को, और फिर हमको क्या करना है, इसको पॉप करना है। ठीक है? किसको पॉप करना है? स्टैक को पॉप करना है। और वहां पे जो एक ए है वो हमारे यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो दो बी रीड करने पे एक ए हम यहाँ पे पॉप कर लेंगे। ठीक है? इसके बाद कहाँ जाना चाहिए मैं? इसके बाद यू कैन से कि आप यहाँ से ए रीड करने के बाद हम दोबारा यहाँ पे आते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आपका ए आया, और आप फिर क्या हुआ, पॉप ए हुआ, फिर आप यहाँ पे आ गए। ठीक है? फिर आप रीड करेंगे ये वाला बी, और फिर आप सेकंड बी रीड करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटा हमारा गलत बन सकता है, क्योंकि अब जब हमने एक बार पॉप करना शुरू कर दिया ए को, तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ए को रीड करना। समझ रहे हैं आप? अगर हमने एक बार बी को रीड करना शुरू कर दिया, तो बीच में कहीं पे एक ए नहीं आना चाहिए, वरना क्या होगा, कोई ऐसा वर्ड भी एक्सेप्ट हो जाएगा जो वर्ड लैंग्वेज में नहीं होगा। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इस रीड के अलावा एक रीड हम और बना देते हैं। और वो रीड भी क्या करेगा, बी को रीड करेगा। ठीक है? तो जब हमारा ये ए पॉप हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, रीड होगा। कौन सा रीड होगा? यहाँ पे आएंगे हम, इसको रीड करेंगे। और फिर क्या होगा, फिर दूसरी बार, फिर सेकंड बी को रीड करना होगा हमें, वो ये वाला बी रीड होगा। फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे पॉप में, और आपका क्या होगा, सेकंड ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। ठीक है? और फिर आप यहाँ पे रीड करेंगे। ठीक है? अब क्या मिलेगा, अब आपको यहाँ से मिलेगा डेल्टा। ठीक है? तो यहाँ से आपको मिला है डेल्टा, एम्प्टी मिला है। यानी कि हमारा स्टैक भी क्या हो जाना चाहिए, एम्प्टी हो जाना चाहिए। फिर वहाँ पर लगाएंगे पॉप, इट शुड बी एम्प्टी, और यहाँ पे हम उसको कर देंगे एक्सेप्ट। ये बोल रहे हैं कि थर्ड रीड क्यों लगाया हमने। अच्छा, कौन सा रीड बोल रहे हो आप? ये रीड वन है, ये रीड टू है, और इसको हम बोलते हैं रीड थ्री। इस रीड थ्री की बात कर रहे हो आप? सत्यम?
इस रीड 3 की बात कर रहे हैं आप, इस वाले रीड की बात कर रहे हैं? हाँ, तो मैंने आपको बताया कि जब हमने ए पढ़े और हम ए को यहाँ पे पुश करते रहे, और जब हम बी पढ़ेंगे तो इसके बाद कोई ए नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम रीड किया हमने, यहाँ पे देखिए, यहाँ से बात, इसके बाद से देखिए आप, जब हमने रीड किया, हमने ये भी रीड किया, ठीक है। फिर हमको क्या करना है, ये वाला भी रीड करना है, सेकंड भी। वो कहाँ रीड होगा, यहाँ रीड होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे, पॉप करके क्या आएगा, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होना चाहिए, जो बाकी के बचे हुए बी हैं वो रीड होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास चॉइस थी, ठीक है, या तो हम सीधा यहाँ से ये चीज यहाँ पे आए थे, इसको मैं रेड से ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से हम वी कुड हैव कम ओवर हियर, ठीक है। लेकिन वो चीज गलत होती, वो इसलिए क्योंकि जब हमने एक बार पॉप करना शुरू कर दिया है, तो उसके बाद वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग टू रीड एनी ए। और यहाँ पे आने का मतलब क्या है कि हम एक ए को भी रीड कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ऐसा भी कोई वर्ड आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं जो लैंग्वेज में ना हो, लाइक दिस, ए बी बी ए बी, ठीक है। तो अगर आप इस वाले वे को फॉलो करते, तो इस ए, इन दोनों बी के लिए ये वाला ए पॉप हो गया होता, और इस वाले ए के लिए क्या करते हैं, हम उसको फिर स्टैक में पुश कर दिए होते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस वाले रीड में क्या है, ए को भी हम रीड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने एक नया रीड बनाया जो ए को रीड करेगा ही नहीं। अगर क्योंकि यहाँ पे ए मिल गया हमको बीच में, बी पढ़ने के बाद अगर हमको ए मिल रहा है, तो वो अपने आप क्या हो जाएगी, मशीन क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्रैश हो जाएगी, और ये वर्ड क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, जो कि होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम इस रीड का यूज दोबारा नहीं करते हैं और नए एक नया रीड बनाते हैं। समझ में आया आपको? आप इसको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो दूसरा तरीका समझने का इसका ये है कि आप इस रीड को भूल जाओ फिलहाल के लिए, और आप इसी रीड का यूज करते हुए चलो। वो जो आपका पीडीएफ बनेगा, हो सकता है वो करेक्ट वर्ड को रीड रीड करे, लेकिन मशीन को हमेशा करेक्ट वर्ड को रीड और एक्सेप्ट करने के अलावा इनकरेक्ट वर्ड को रिजेक्ट भी करना चाहिए, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा वो वर्ड, इनकरेक्ट वर्ड जो है, जो लैंग्वेज में नहीं है, उसको भी वो एक्सेप्ट करवा दे। वो नहीं होना चाहिए। वो यहाँ पे पॉसिबल था कि ऐसा हो जाता, इसलिए हमने क्या किया, हम सीधा मान के चल रहे हैं कि अगर हमने ए पॉप करने के बाद रीड करना है तो हमको बी ही मिलेगा, ठीक है। अब इस वाले रीड में क्या फर्क है, ये रीड ए और बी दोनों को रीड करता है, और ये सिर्फ बी को रीड करता है, ठीक है। सो दिस रीड कम्स इनटू एक्शन वंस वी हैव स्टार्टेड रीडिंग बीस, ओके। जबकि ये रीड क्या था, ये बस पुश करने के लिए था ए को, ठीक है। तो दोनों का कार्य क्या है, अलग अलग वर्क है दोनों का। ओके, शुड वी स्टॉप नाउ? You want to study more? Any question you want to ask? Any question you want to ask, you can ask in the comment section. And as I'm recording this lecture, I'm going to upload it into my channel. I'm going to share the link with you. अगर किसी से कुछ बीच में छूटा है तो वहां से वो उसको देख सकता है। Okay then. Thank you for joining.